برف پہ چلنے سے. آپ تو صرف صوفیہ کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں. یہ بھی تو ایک بزدلی ہی ہے. چلو اچھا، خیر سے جاؤ، لیکن جلدی جلدی ہم سے ملنے کے لیے آتے رہنا. بھائی صاحب آپ کو آفاق اور نمیرہ کی شادی پر تو اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اس بات کا جواب بھی نمیرہ خود دے گی. ہر عورت اپنے شوہر میں اپنا محافظ چاہتی ہے، اور جو شخص میری حرمت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اسے میں اپنا محافظ کیسے مان لوں؟ یعنی کہ آپ کو میری مدد چاہیے؟ یہی سمجھ لیں. کیا آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کی مدد پہلے بھی کر کے مجھے دل چکنی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اگر آفاق فصل نہ ملنے پر مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا کہوں؟ اسے میرے پاس بھیج دیں. بڑے چلنے سے، برف پہ چلنے سے. دادی ماں، نجمہ آنٹی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن شجاعت انکل کی مشکل کا کیا حل نکالنا؟ شجاعت کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اسے الیکشن کا ٹکٹ مل جائے گا اور وہ الیکشن جیت بھی جائے گا تو پھر اسے قرار آئے. مگر میں یہ کیسے کروں؟ وہ ایسے کہ تم اس کو یقین دلاؤ کہ آفاق کی ظلم و جبر کی سیاست سے بہتر ہے پیار و محبت کی سیاست، کہ اس سے لوگوں کے سر بھی جھکائے جا سکتے ہیں اور دل بھی جیتے جا سکتے ہیں. تو پھر اسے یقین آئے. مگر وہ آفاق سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں. جب وہ تم پہ اعتبار کرنا شروع کر دے گا، جب اسے پوری طرح تم پہ اعتبار آ جائے گا، پھر اس کا خوف بھی جاتا ہے. ایکسکیوز می دادی. بائی آل مینز. ہاں راہیل. ہائے نمیرہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں. تم نے کیسے یاد کیا؟ آپ کو یاد کرنا منع تو نہیں؟ نہیں، میں سمجھی شاید کوئی کام ہوگا. کام تو آپ ہی دیتی ہیں. نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ میں تم سے، ہاں تم میری مدد. نمیرہ، میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں. مجھے تم سے مشورہ لینا تھا. اوکے، کب اور کہاں ملنا ہے؟ میں تمہیں ابھی فون کر کے بتاتی ہوں، بس تم پاکستان سے جانے کا نہ سوچو. نہیں سوچتا. خدا حافظ. وہ راہیل کا فون تھا. راہیل، یہ تو وہی لڑتا ہے نا جس سے تمہارے بہنوں نے تمہارا رشتہ طے کیا. جی. اچھا لڑکا. ہم آفاق اور شجاعت انکل کی بات کر رہے تھے. نمیرہ، تم بس اپنا کام کرتی رہو. جیسے جیسے حالات بدلیں گے شجاعت کو بھی تم پہ یقین آتا جائے گا اور وہ تم پہ اعتبار کرنے لگے. سب ٹھیک ہو جائے. جی دادی ماں، میں عدیلہ آنٹی کو ملنے جا رہی ہوں. ہاں ضروری ہے. جاہل عورت کا بھی دماغ ٹکانے لگا. کیا جاؤ شاباش. جی. جاہلوں کی ٹیم کتنی سیریت ہوتی. اللہ ہی رحم کرے. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. آج ادھر کا رخ کیسے کر لیا؟ آپ سے ملنے کو دل چاہا تو آ گئی. ویسے سیدھے سیدھے بات کرو، کیا ہے؟ بیٹھو. چائے وغیرہ کو نہیں پوچھیں گے؟ دیکھو لڑکی، یہ پیر زکاوت کا گھر ہے، تمہارا میکا نہیں ہے جو اس طرح کے نخرے مجھے دکھا رہی ہو. ناراض کیوں ہوتی ہے؟ چائے نہیں تو نہ صحیح. مجھے اور بھی کام ہے. اگر تم آفاق کی شکایت کرنے میرے پاس آئی ہو تو پھر
गलत जगह पर आई हो। जानती हूँ, आफाक की शिकायत करने के लिए मुझे कहीं और ही जाना चाहिए। तुम खुद। एक मिनट आंटी, बात दरअसल ये है कि मेरी सास आपकी वजह से हर पार्टी, हर महफिल और हर फंक्शन पर जाने से घबराने लगी। ओहो, यानी कि तुम अपनी सास की फरियाद लेकर आई हो मेरे पास। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें। जो सच है वो तो सच है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोल खोलना बंद कर दूं। मैं आपकी भी तो बहू हूँ, कुछ तो ख्याल रखें। अब तुम माफी मांगोगी, मुझे वास्ते दोगी? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये देने आई थी। क्या है ये? मेरे पास ताबिंदा की एक सीडी भी है, वो भी आपको दूं या फिर आफाक को? तुम आखिर चाहती क्या हो? ज्यादा नहीं, बस यही कि आप मेरे खिलाफ अपनी जबान को काबू में रखें, वरना ये सीडी हर टीवी चैनल पर चलेगी और इंटरनेट पर भी। तुम बहुत। क्या करूं, चोरों को पकड़ने के लिए चोर तो बनना पड़ता है। आप ना सिर्फ मेरे खिलाफ अपनी जबान बंद रखेंगी, बल्कि मेरी और नजमा आंटी की हर महफिल में तारीफ भी करेंगी। तुम किसी से ताबिंदा के बारे में कहोगी तो नहीं? जरूरत पड़ने से पहले तो हरगिज नहीं। देखो देखो, ताबिंदा इस घराने की बेटी है, इज्जत है। खुदा के वास्ते उसकी बातें मत उछालना। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। साइका, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। थैंक यू नुमेरा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, जल्द ही तुम्हें एक नई मुहिम पर जाना है। चलो, मैं इंतजार करूंगी। अब तो अम्मा जान खुश है ना? हाँ, और मैं भी हैदर के साथ बहुत खुश हूँ। ये काम तो खत्म हुआ, अपने घर पर क्या करूँ? अच्छा भाई, अब मैं जल्द ही तुम्हें देहाती लाइफ पर रिसर्च करने के लिए भेज रही हूँ, और उसमें कोई खतरा भी नहीं। अच्छा, चलो मैं इंतजार करूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर आफाक को जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी। ये आपको किसने दी? इससे क्या फर्क पड़ता है? माम, फर्क पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ मेरा दुश्मन कौन है। वो बाय पोस्ट आई है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, मुझे कौन ब्लैकमेल करेगा? उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अभी आप कह रही हैं पोस्ट से आई हैं, अभी आप कह रही हैं कुछ नहीं मांगा। भाई, मेरा मतलब ये कि इसके साथ कोई लेटर नहीं आया है। जिसने भी ये पिक्चर्स भेजी हैं वो कुछ तो चाहता हो। तुम काम की बात करो, अपने साथ साथ अपने बाप की इज्जत भी डुबो दोगी। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया यार? आफाक की हरकतों से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मैं जरा सा एंजॉय कर लूं तो तमाशा बन जाता है। प्लीज मॉम। मेरे खुदाया, ये लड़की तो कयामत लाकर रहेगी, लेकिन पहले मुझे नुमेरा जैसी आफत को खुश करना है, फिर सकावत और आफाक तक उसकी चालाकियों को नहीं पहुंचाना। तो तुम्हें आफाक पर किस किस्म का शक है? मैं ठीक से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आफाक जैसा शख्स किसी गलत धंधे में ना इन्वॉल्व हो, ये मुमकिन नहीं। यानी कि तुम उसे उसी के नाजायज धंधों में पकड़वा कर बदला लेना चाहती हो?
यही समझिए, मेरा मकसद तो सिर्फ उसको उसके किए की सजा दिलाना है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा? मीडिया की ताकत से कौन वाकिफ नहीं, और फिर आपकी बात तो लोग आंखें बंद करके मानते हैं। आपकी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत चैनल्स और न्यूज़पेपर्स तक पहुंच है। आपकी बात तो ना हुकूमत और ना ही आवाम इग्नोर करेगी। लगता है काफी रिसर्च किया आपने मेरे बारे में। रिसर्च बिना ही मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। वेल, इस कॉन्फ्रेंस का बहुत शुक्रिया, पर इस काम में काफी वक्त और पैसा लग सकता है। आप फंड्स की फिक्र ना करें, हाँ टाइम देना पड़ेगा। देखो नुमैरा, मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, किसी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, इस काम के लिए मेरी चॉइस बिल्कुल गलत थी। मेरा प्लीज बैठ जाओ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बात कर दी। आई डिडंट मीन इट। अगर आपने काम नहीं करना तो साफ तरह से इनकार कर दें। ये तंज और ताने का क्या मतलब? बोला ना, आई डिडंट मीन इट। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे आफाक के बारे में बताओ। शुजात अंकल ने कई बार बताया है कि आफाक उनके कारोबार संभालता है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी कारोबार का नाम नहीं बताया। आई सी। और तुम्हारी दादी माँ इस बारे में क्या कहती है? दादी माँ अपने दोनों बेटों और आफाक की वजह से बहुत दुखी रहती है। वेल, इन दैट केस मैं काम शुरू करता हूँ और तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा। सबसे पहले तो मुझे ऑफिस छुट्टी के लिए दरखास्त देनी पड़ेगी। थैंक यू राहील। मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ था और रहूंगा, और आफाक को पकड़वाने में भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा जहां तक पॉसिबल है। थैंक यू। एक बात और। क्या? वो ये कि मैं नुमैरा को तुम कहकर बुलाता हूँ, बेहतर है कि नुमैरा भी मुझे तुम कहकर बुलाए। मंजूर? ठीक है। नुमैरा, नुमैरा आज तो हद ही हो गई। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? खैरियत ही खैरियत है। पता है, अदीला के यहाँ डिनर पर तुम्हारी बहादुरी की और तुम्हारी जहानत की इतनी तारीफें हुई हैं, और साथ साथ मेरी भी। तो असर हो गया? किस चीज का? दवाई का। मगर ये सब कुछ तुमने किया कैसे? आप क्यों और कैसे के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? तुम्हारा ये जो ट्रैक्टर्स हैं, इनका ऑर्डर तुमने दिया था? जी हाँ। क्यों शादाबाद वालों के जानवर मर गए हैं या उनके हाथ टूट गए हैं? लेकिन ट्रैक्टर से काम करने और जानवर और हाथों से काम करने का फर्क सब जानते हैं। मैं जानता हूँ, मगर ट्रैक्टर्स की पेमेंट कौन करेगा? मैं करूंगी। अच्छा, उस पैसे से जो मैंने तुमको दिया है। अंकल, आपने जो मुझे दे दिया सो दे दिया, अब आपको उसका दुख क्यों है? कौन सा पैसा? तुम चुप रहो। आप यकीन करें, मैं जो भी कदम उठाऊंगी उससे आप ही को फायदा होगा। मैं अभी तक इस उलझन में हूं कि आफाक को फसल में हिस्सा ना देने के लिए क्या कहूंगा कि ऊपर से ये आफत आन पड़ी है।
आपको किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम कल की लड़की, तुम इन बातों को नहीं समझती। नहीं समझती थी, मैंने समझा दिया है और ये समझ भी गई। माँ जी, आप क्यों मेरे करियर और घर को तबाह करने पर तुली हुई हैं? अंकल, आप क्या चाहते हैं? शादाबाद से आमदनी, पार्लियामेंट की मेंबरशिप या फिर कुछ और भी? मैं यही चाहता हूँ। फिर आप बेफिक्र रहे। मैं शादाबाद में जो कुछ भी कर रही हूँ उससे आपकी आमदनी दुगनी होगी और आपकी सियासी जिंदगी पर भी अच्छा असर होगा। लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? अब तक तो आपको यकीन आ जाना चाहिए था। लेकिन मेरे दूसरे कारोबार आफाक के साथ हैं, उसे भी राजी रहना चाहिए। तुम्हारे जो भी कारोबार है उसका हमें नहीं पता करना, लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ कि आफाक के कारोबार को शादाबाद से अलग रखो। जाने दो शाजी, एक बार इस पर भरोसा करके देख लूं। अगर फायदा होता है तो ठीक है, वरना फिर आप मुझे और मेरे बच्चे को तहफ्फुज दें और मैं आपको शादाबाद से दुगनी कमाई करके दूंगी और शादाबाद के सारे वोट भी आपके। और अगर तुम नाकाम हो गई तो? आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अगर मैं नाकाम रही तो फिर आप जो सजा मुझे देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। माँ जी गवाह हैं। आंटी, आप और दादी माँ गवाह हैं। बर्फ पे चलने से चाचा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सारी फसलों में से ज्यादातर हिस्सा शादाबाद से आता है। आपने वही कमा दिया। आफाक, मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया है। तुम इस साल शादाबाद की फसल को भूल जाओ। भूल जाऊं? मगर पता तो चले उस फसल का होगा क्या? ये नुमेरा का हेडेक है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, फसल किसानों में बांट देगी। चाचा जी, किसानों का पेट भर गया तो सर उठाकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर काबू में नहीं आने वाले। ऐसा कभी नहीं होगा आफाक। नुमेरा का मिसाली ख्याली गांव कभी नहीं बनेगा। खुद ही थक हार कर दस्तबरदार हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसके इस ख्याली गांव का ख्वाब हमारे लिए डरावना ख्वाब बन जाए। ऐसे बहुत सारे मुहिब्बुल वतन मैंने देखे हैं। समुद्र की झाग की तरह उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं। उसके उन मीडिया वाले दोस्तों से भी होशियार रहना होगा। आफाक, हर काम पैसे से होता है इस दुनिया में, और जो कुछ नुमेरा के पास है वो बहुत जल्दी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जल्दी खेल खत्म।
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ویسے بھی یہ گندم اور چینی کی ہورڈنگ سے تنگ آ چکا ہوں. اسے نمیرا کو ایک طرف مگن رہنے دو, ہم اپنا کام کرتے جاتے ہیں. اسلحے اور منشیات کے لیے کچھ پارٹیز سے ملوائیے. اتنے کام میں گزارا نہیں ہوتا چاچا جی. میرے خیال میں اب تمہیں اسلحہ سرحد پار بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ یہاں اسلحے کی مانگ بڑھنے والی ہے. فساد کا خطرہ ہے. خطرہ پیدا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. بس تم شاد آباد سے جو فصل کا نقصان ہے میرا اور تمہارا, وہ پورا کرنے کا بندوبست کرو. سمجھے, ہو گیا چاچا جی, ہو گیا. دادی ماں, میں نے شجاعت انکل سے اتنا بڑا وعدہ تو کر لیا ہے, لیکن اب میں بہت پریشان ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے, تم بس اپنا کام کیے جاؤ, اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ, تم دیکھتی ہو جاؤ. میں نے نعمان اور سائقہ کو کام تو دے دیا ہے, لیکن یہ سارا کام کرنے اور سنبھالنے کے لیے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے. ٹھیک کہہ رہی ہو. تو شجاعت سے کہہ دو, اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے, آفس ارینج کر دے گا تمہارے لیے. پر دادی ماں, میں سارا دن بلال سے دور نہیں رہنا چاہتی. کیسی دوری, سارا وقت تو بلال میرے پاس ہوگا تمہاری آیا کے ساتھ, دور تھوڑی ہو تم مجھ سے. ٹھیک ہے, پھر انکل سے آپ ہی بات کریں. بات بھی کر لوں گی, لیکن بھائی تم نے عدیلہ کے ساتھ خوب کی. اس کو تو تمہاری اور نجمہ کی تعریف کیے بنا کچھ بن ہی نہیں آتی. پر دادی ماں, نہ جانے کیوں مجھے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا. اسی کا نام سیاست. جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی, اور پھر نجمہ کو تو خوش کرنا تھا نا. جی دادی ماں, آئی تھنک یو رائٹ. آؤ سائقہ, مجھے تمہارا انتظار تھا. جی کہیے. I'm here. سائقہ, تمہیں نجمہ آنٹی کے ساتھ سارے فنکشنز پر جانا ہوگا اور اس کی کوریج اپنی چینل پر دینی ہوگی. ساتھ میں نعمان کے اخبار میں تصویریں بھی دینی ہوں گی. اس کے لیے مجھے اپنے پروڈیوسر سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہاں تو لے لو, ویسے کمرشلز کا انتظام بھی نجمہ آنٹی خود ہی کریں گی. That's great. I think پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور نعمان بھی مان جائیں گے. لیکن ایک بات بتائیں, آپ ان کے کاموں کی پبلسٹی کیوں چاہتی ہیں؟ I mean, ایسا کیا کارنامہ کیا انہوں نے؟ بیچاری غریبوں کو گلے لگاتی ہیں, ہر انٹرنیشنل ڈے پر انہیں تحفے دیتی ہیں, ساتھ میں ان سے نوکری کے وعدے بھی کرتی ہیں. کیا یہ کسی کارنامے سے کم ہے؟ صرف وعدے. ویسے یہ سارا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ پیسہ تو ہم جیسوں کا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر یہ سارا کا سارا پیسہ ان وزیروں کے بینکوں کے بجائے اسی بہانے غریبوں پر خرچ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ان کی تھوڑی سی چاپلوسی کے بدلے. کام تو اسی طرح شروع کرنا پڑے گا, پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. Okay, as you say, I think I should start my work now. اچھا, تم ان سے فنکشن کی تفصیلات لے لو اور پھر انہیں کیسے بہیو کرنا ہے, کیا اور کب کہنا ہے, یہ تم انہیں بریف کر دو. Okay, as you say. تھینک یو. تو تم دونوں کے بارے میں
पार्टी के लोगों का क्या कहना है? वो मेरी जगह आफाक को टिकट देने पे राजी हैं। और तुम? बाबा जी, आप गांव में अपने मोर्चों पर डटे रहें और अपनी फौजें तैयार रखें। आप दोनों को किसी वक्त भी मेरी फौज की जरूरत पड़ सकती है। हम दोनों को ही क्यों, आजकल तो प्राइवेट आर्मी का बहुत रिवाज है। ये तो और भी अच्छा काम है। मगर मैं अपने आदमियों को बैरून मुल्क भेजने के हक में नहीं हूं। बैरून मुल्क क्यों? यहाँ काम की कमी तो नहीं है। और वैसे भी इलेक्शन से पहले प्राइवेट गार्ड्स के दाम और मांग दोनों बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन मैं एक और बात सोचता हूँ। वो क्या बाबा? कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो। मगर क्यों? कब कौन पावर में आ जाए इस कौम का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। इसलिए हम में से कोई एक किसी और पार्टी में हो तो अच्छा ही है। लेकिन आप मेरे खिलाफ नहीं खड़े होंगे। कुछ पागल नहीं हूं मैं। अगर किसी और हल्के में से तुम्हारे जीतने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन अभी वक्त है, किसी और हल्के में असर और रसूख बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारे जहन में कौन सा हल्का है? मैं अपने मुशीरों से मशवरा करता हूं कि कौन से हल्के से मेरे मुरीदों की तादाद ज्यादा मिल सकती है। सीट छोड़ने को तो ज़कावत का दिल ही नहीं है। ये आप दोनों क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। जानता हूं मेरा कांटा तुम दोनों को खटकता है। मैंने ये अनाज की जखीरा अंदोजी और उसकी स्मगलिंग के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं। हमारे मुल्क में लोग अनाज को तरसते हैं और ये जमींदार कितनी बेदर्दी से लोगों का अनाज दूसरों को स्मगल करते थे। हाँ, सही कह रहे हो। देखो ना, एक बोरी अनाज की यहाँ पे जो 100 रुपए की बिकती है वो स्मगल होकर 3 गुना ज्यादा हो जाती है। अब इस जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठानी है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। सारा मटेरियल कंपाइल करना, फिर फाइनलाइज करना, कुछ टाइम तो लग जाएगा। और कुछ बातें हैं जो सिर्फ अंदर का आदमी बता सकता है। रुमान, आप दादी माँ के पुराने मुलाजिम कपूर लाला से क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद कर सके। ठीक है, आप मेरी उससे मुलाकात करवा दीजिए। ठीक है, मैं करवा दूंगी। राइट। एनीवे, मैं चलता हूँ फिर। थैंक यू। राहील, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कहिए। तुमने आफाक के बारे में कुछ बताया नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हतमी चीज मालूम नहीं हो सकी है। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई, ये मैं अभी टीवी पे क्या देख के आ रहा हूँ? क्या देख लिया बाबा? तुम्हारी मम्मी जी नजमा भाभी और उनकी बहू की तारीफें कर रही थी। कब? कहाँ पे? अब इतनी बड़ी तकरीब में बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठकर
मैं किसी की तारीफ ही करूंगी ना, गालियां तो नहीं दूंगी ना। खामोश भी तो रहा जा सकता है। मुझे भी बोलने का शौक नहीं है। वो तो अचानक प्रेस वाली ने मुझसे सवाल कर लिया नजमा भाभी और जफर की होने वाली बेवा के बारे में, तो फिर मजबूरन मुझे बात बनानी पड़ी। किसने क्या सवाल कर लिया? मुझे नहीं मालूम, कोई प्रेस वाली थी। वैसे बड़ी अजीब बात है, वो तुमसे उनके बारे में क्यों सवाल कर रही थी? सब जानते हैं कि हम उनके रिश्तेदार हैं। गांव से और खास तौर पर शादाबाद से भाई साहब की बहू की बहुत तारीफें सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये शादाबाद का मसला मेरी समझ से बाहर है। नुमैरा की मकबूलियत हमारे लिए खतरा बन सकती है। चाचा जी कोई खुफिया खेल है हमारे साथ। हाँ, नुमैरा ने बड़ी होशियारी से भाई साहब और भाभी को अपने हाथ में ले लिया, या फिर चाचा जी ने नुमैरा को अपना मोहरा बना लिया। रहने भी दो, क्या छोटी सी बात का अफसाना बना रहे हो? क्या बात है मम्मी, आप कुछ डरी डरी से बातें कर रही हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक बात बता दूं मैं आपको, मैं ताबिंदा की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ, और तुम अब नुमैरा की फिक्र छोड़ो और ताबिंदा की फिक्र करना शुरू करो। हाँ आफाक, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो ताकि इस काम से फारिग हो। इसका कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा, वरना इसकी हरकतें बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। आफाक की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, हो सकता है इसमें शुजात का भी हिस्सा हो। कितनी बड़ी कंपनी है? 10 ट्रेलर्स तो हैं। उनसे इतनी आमदनी हो जाती होगी? क्या तुम नहीं जानती? क्या? इन ट्रक्स पर असलहा और मनशियात की स्मगलिंग होती है। कराची के रास्ते खैबर, क्वेटा के रास्ते अफगानिस्तान और वापस कराची, दोनों तरफ से भरे हुए होते हैं। आफाक को मैंने ट्रक के पकड़े जाने और चौकी पर उसके आदमी ना होने से परेशान होते देखा है। कब? उसकी कैद में। हेलो हेलो। अरे राहिल भैया, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो फिर जल्दी से बताएं। वो मेरी डॉक्यूमेंट्री वो ना सिर्फ रेडी है बल्कि उसके खरीदने वाले भी मिल गए। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। लेकिन मेरा तुम्हें एक मशवरा है। हाँ बोलो। तुम अपना नाम इसमें से निकलवाओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी मेहनत से बनाई है। जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी मेहनत करते हो, लेकिन उसके लिए जिंदा रहो। आई सी। हाँ नहीं, कह तो सही रहे हो तुम। जाहिर है इतने बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों के नाम है उसमें। नुमान, आप अपना ख्याल रखना। अभी से डर गई? डरती तो मैं हूँ। हमारा काम ही इतना खतरनाक है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो फिर कब नशर हो रही है तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री? परसों रात वो यूनिवर्स चैनल पे। और हाँ यार, मैं अपना नाम हटवा दूं उसमें से। थैंक्स। माय प्लेजर। आप दोनों बातें करें, मैं जरा बिलाल को देख कर आती हूँ। और भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? इट्स प्रोग्रेसिंग बट रादर स्लोली। अगर मैं एक बात सोचता हूँ। क्या? हमारे के पास इतना पैसा, यार मतलब है उसके पास इतने फंड्स कहाँ से आए? हाँ, ये बात मैंने भी एक आध बार पूछी थी उनसे। उन्होंने कहा कि फंड्स की कोई कमी है ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है शुजात उसको कितने फंड्स देगा? शुजात उनको और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि नुमैरा को क्यों देगा? अपनी तबाही लाने के लिए। शायद वो दादी माँ उसकी मदद कर रही। दादी माँ अपने बेटों की तबाही के लिए? यार तुम साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते उनसे? नहीं, इसलिए कि अगर उसे बताना होता वो खुद बता देती। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं यार,
मैं उस पर शक करना नहीं चाहता। हाँ तो फिर ठीक है, वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। बर्फ पे चलने से